to be the problem for us. So we are in the search of solutions. How can we satisfy our need? Now there enters the marketer. यहीं पर marketer की entry होती है. And they offer you a solution of your problems that happens to be your need. आपका जो need है यही आपका problem है जिसका solution आप खोजते हैं. Because unless you seek the solution of the problem, tension will start mounting up. And you will be in a state of perpetual tension, and that will result into a drive. और जब drive जन्मेगा ना, it will force you to act. It will force you to seek solutions to your problems. It will seek the satisfaction of the need. Getting it? एकदम framework एकदम clear रखिएगा. Marketing is a very interesting paper. If you could relate, if you could understand what we are talking of. Because we all are consumers. We experience these day in and day out. हम लोग इन क्लासेस में केवल एक फॉर्मल और एक लॉजिकल डिस्कशन करने वाले हैं और कुछ नहीं. We all are consumers. सारा खेल तो हम ही लोग के लिए होता है. All these marketing activities are focused on us only, isn't it? So we are at the center of all marketing attractions. All the marketing activities are directed to us only, and we all, one and all. तो आप समझ सकते हैं कि आप इसे relate कर सकते हैं. So make sure कि you be a part of the discussion process and don't be a fence sitter. बाहर से तमाशा देखने वाले लोग मत बनिए. And चुपचाप बात सुनिए भी मत. Analyze what is being talked about. Do I agree? Do I have something to add to it? Most welcome. तभी आपको मजा भी आएगा और क्लास बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए. So make sure कि you pay full attention, undivided attention, and you relate yourself with the discussion process. Marketing को अगर कहें, what marketing is, forget about the definitions. Marketing is essentially offering a superior value to the target customers. क्या मतलब? Marketer offers a solution to the problem. और ये solution है क्या? उसका product. Marketer will offer you a product which if you use, you will be able to satisfy your need. Simple. That is the game plan. Marketer is going to offer you the product, the consumption of which would yield the satisfaction of the needs. And satisfaction of the needs, and therefore we are interested to accept the product. Otherwise, why at all we would have bought the product? Getting it? So, of making a superior offer. Superior किससे? किसके comparison में मुझे superior होना है? Competitors, because there are other marketers as well. तो उसके respect में मुझे superior value offer करना है. और value का मतलब क्या है? Benefit minus cost. That is the net value. How much benefit are you getting? और benefit का क्या मतलब होता है? Whatever advantage that you get because of having the product. Product हासिल करने से आपको क्या फायदा हुआ? तो दो तरह के फायदे हो सकते हैं. एक होता है functional benefit. जैसे if you have bought a pen, it should write. Will anybody be buying a pen that does not write? बड़ा रुक रुक कर चलता हो और आपका कल एग्जामिनेशन हो और उस पेन खरीदने की बात हो and they are offering 80% discount. पेन है तो उसको लिखना चाहिए. That is the basic function. ठीक है? So pen should write. That is the first condition. That is the basic function. That is the functional benefit. तो याद रखिएगा, functional benefit, the very purpose for which the product is purchased. If you have bought a drilling machine, it should make holes. अगर होल नहीं बनाएगा तो ड्रिलिंग मशीन के लेने का क्या मतलब है? कितना भी अट्रैक्टिव वो लगे, कितना भी सुंदर लगे, doesn't make any sense. और दूसरा बेनिफिट होता है इमोशनल बेनिफिट. इमोशनल बेनिफिट का क्या मतलब? Which is very psychological in nature. जैसे मान लीजिए कि अगर you have to gift your best friend on his or her birthday, and you are thinking in terms of presenting a pen. Why not Agni Gel? Agni Gel भी तो अच्छा ही लिखता है.
एंड परहैप्स बहुत ही अच्छा लगता है. So if you gift Agni gel to your friend, perhaps you will not be seen in good light. Your friend perhaps may not be very happy with it. So why are you looking for a Parker or Pierre Cardin or Mont Blanc? ये सब क्यों? बड़ा premium products, premium brands, emotional benefit. पेन का काम है लिखना. Any pen will write. Why are you searching for the most expensive pen to consider as a presentation to your friend? क्योंकि emotional benefit is there. आपका जो attachment है, आपका जो value है that you accord to your friend, that will come your way. So make sure कि people keep on coming whenever you like to. तो वो हम ध्यान रखिएगा. You as a marketer will have to offer a superior value to your target customers. अच्छा, ये target customers की बात हो रही है. इसका मतलब क्या? Anybody and everybody is not your potential customer. पूरा मार्केट आपका नहीं है. इस भ्रम में मत रहिए. Getting it? Customers are so different in so many respect कि मुझे एक ग्रुप ऑफ कस्टमर को चुनना होगा और उन्हीं पर फोकस करना होगा. अगर ऑडी वाले सबको कार बेचने लगे, पूरे मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करने लगे, वो गलत करेंगे. तो दे हैव फिगर्ड आउट द प्रीमियम मार्केट सेगमेंट, जो एफ्लुएंट क्लास है. गेटिंग इट? उन्हीं को मुझे कैप्चर करना है. सबको हम लोग इतनी एक्सपेंसिव कार नहीं बेच सकते हैं. मर्सिडीज या फेरारी सबके लिए नहीं है. और बड़ी एक्सपेंसिव के क्या, छोटी कार की भी बात करें, नैनो सबके लिए नहीं है. जो सुपर रिच क्लास होगा वो क्यों नैनो लेगा? गेटिंग इट? तो अलग अलग मार्केट का सेगमेंट बना हुआ है. तो एज अ मार्केटर यू हैव टू फिगर आउट कि किस सेगमेंट को मुझे अटेंड करना है. सेगमेंटेशन में पढ़िएगा, पढ़ाएंगे आपको सर मैम जो भी है. सो यू विल फिगर आउट कि ये ग्रुप ऑफ कस्टमर्स पर मुझे फोकस करना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल ब्रिंग अबाउट योर मार्केटिंग प्रोग्राम. You will develop your marketing program in order to make a superior offer. अच्छा, जो भी टारगेट कस्टमर को हम लोग चुनेंगे ना, उसमें बहुत सारे मार्केटर होंगे या आने वाले समय में हो जाएंगे. हो सकता है you have made the first entry, आप ही सबसे पहले उस सेगमेंट में एंटर करें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो बाकी आएंगे बाद में इनको रोक सकते हैं. They also will enter into that segment and you will have to face competition either at the time of entry or in future. Competition तो face करना होगा आपको. So in face of competition, how are you going to offer, how are you going to get customers? देखो क्या हो रहा है. अब competition तो हो गया उस सेगमेंट में जहां हम लोगों ने सोचा था एंटर करने का. Competition is there. How can we still get the customers? कोई हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब यहां पर सुपीरियर वैल्यू की बात होगी. वी ऑफर अ सुपीरियर वैल्यू, देन ओनली यू कैन गेट कस्टमर्स. कहीं ना कहीं आपको एज लेना होगा, कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज लेनी होगी. इसका क्या मतलब? अगर आपको याद हो, वी हैड टेलीनॉर जिसका सर्विस सबसे वाहियात. गेटिंग इट? पटना में भी बड़ा मुश्किल से लगता था, बाहर में तो, पटना के बाहर तो खैर नेटवर्क बिल्कुल ही खत्म. उसके भी सब्सक्राइबर थे, जिसको किस कंपनी ने अक्वायर किया? टेलीनॉर? एयरटेल ने. एयरटेल ने किया. वेरी गुड केशव. गुड चंदन. एयरटेल ने उसको अक्वायर किया. उस कंपनी के भी, उस सर्विस प्रोवाइडर के भी सब्सक्राइबर्स थे. उनका एडवांटेज क्या था? देखिए, बिना एडवांटेज का कोई आपसे जुड़ेगा नहीं. उनका क्या एडवांटेज था? ठीक है, मेरा नेटवर्क बहुत पुअर है, वी एडमिट, लेकिन मेरा सबसे सस्ता नेटवर्क है. सबसे सस्ता था. उसका टैगलाइन भी था सबसे सस्ता. तो वो सस्ता के बेसिस पर लड़ रहे थे. अब वो कस्टमर जो बहुत माइंड नहीं करता, ठीक है 3 4 5 बार ट्राई करते हैं, छठा बार तो लग ही जाएगा, तो दे डिड नॉट माइंड कि चलिए भाई बहुत सस्ता मिल रहा है. बहुत उस समय एयरटेल वाज द लीडर, और एयरटेल यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई टैरिफ. 99 रुपीज में 1 GB देते थे लोग महीना. उसे पूरा महीना चलाते थे लोग. बताइए,
और 1 GB ले लिया तो अपने को बिल्कुल राजा समझता था वो, और 1 GB आज के रेट में कितना कितना घंटा चलेगा पता नहीं। गेटिंग इट? तो क्या जियो ने कैसे पूरे मार्केट को एकदम ओवरहॉल कर दिया। नाउ यू विल देखते हैं 3-4 बार बर्फिंग होगा तो आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, नेटवर्क सही नहीं है, ये नहीं है, नहीं। और उस जमाने में टेलीनॉर के जमाने में रात भर बर्फिंग होता था एंड पीपल यूज्ड टू टॉलरेट। कस्टमर will seek the value for money. Getting it? तो सबसे पहले कस्टमर को जियो ने करप्ट कर दिया, आपका आदत बिगाड़ डाला हम लोगों ने। अब तुरंत आपको हाई स्पीड नेट मिल रहा है, तुरंत आपका यूट्यूब खुल रहा है, सब एकदम हाइपर एक्टिव हो गया है। नाउ यू कैन नॉट सेटल डाउन फॉर एनीथिंग लेस, यानी बाकी को अब compete करना होगा, दे हैव टू रेज देयर स्टैंडर्ड्स। सो एकदम ध्यान में रखिएगा, वी आर कंसर्न अबाउट ऑफरिंग अ सुपीरियर वैल्यू। कहीं ना कहीं एज लेना ही होगा। जैसे मान लीजिए आपका भी सर्विस वैसा ही है जैसा दूसरा का हो, बिल्कुल हो सकता है आपका आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत अच्छा होगा, या आपका ग्रीवेंस हैंडलिंग बहुत अच्छा होगा, या आपका टैरिफ कम होगा, कुछ ना कुछ तो एडवांटेज लेना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो व्हाई एट ऑल वन शुड ऑप्ट। ठीक है, सो व्हाई वन शुड ऑप्ट फॉर योर ऑफर, ये तो चलता ही रहेगा। देखना नेटवर्क बीच में गायब हो जाता है, इतना ज्यादा लोड पड़ा हुआ है ना, you never could figure out. Now let us move on to the topic of the day. And those of you who have come late, we are discussing marketing plan. Marketing plan is the topic of our discussion. Now that we have a fair amount of idea regarding what marketing is, and as we have discussed, marketing is offering a superior value to the target customers and maintaining a long-term relation with them. दो चीज ध्यान में रखिएगा, whenever marketing comes to your mind, दो चीजें एकदम ध्यान में फ्लैश करनी चाहिए। क्या क्या? Offering a superior value to the target customer. Right. Offering a superior value to the target customers and maintaining an everlasting relationship with them. ये relationship पर इतना जोर क्यों? क्योंकि आज के डेट में कस्टमर का खोना बहुत आसान हो गया। Customer retainment has become the biggest of challenge that is faced by the marketer. बहुत आसानी से कस्टमर आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। One fine day that you will find that you are lost, खत्म। कस्टमर जो है ना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट होता है, जिसके साथ फायदा होगा उसी के साथ निकल जाएगा। Yes, Priti, what you wanted to repeat? In fact, we are repeating the and I am not supposed to repeat. You know, I have just one class in a week. तो अगर बातें समझ में नहीं आ रही होंगी ना तो यू टेल मी कि ये बातें मेरे को समझ में नहीं आई। गेटिंग इट? अब रिपीट का मतलब तो शुरू से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां भी आपको लगेगा कि नहीं ये बात मेरे को, या फिर उसी समय रोकिएगा। एंड यू आर मोस्ट वेलकम, आई डोंट एवर माइंड। मुझे तो आप अच्छा लगेगा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तभी तो आपने मुझे रोका है। फील फ्री, एकदम लगे कि यस दिस इज योर क्लास। गेटिंग इट? हमेशा इसी माइंडसेट में रहिएगा, क्योंकि सीखना आप ही को है। एंड यू हैव बिकम द मास्टर, यू हैव टू बिकम द बेस्ट। ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, बहुत ही। यस नवीन। सर यस नवीन, वैल्यू जो आपने या बेनिफिट एंड लॉस के बारे में सर, वैल्यू जो बता रहे थे, वैल्यू के बारे में। अच्छा, वैल्यू जो बता रहे बेनिफिट्स थे, और लॉस के बारे में। ओके फाइन। तो वैल्यू होता है ना, वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट एंड द कॉस्ट। एज अ कस्टमर, when you buy a product you get certain benefits, isn't it? पहले आप नहीं लिख सकते थे, आपने पेन खरीदा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत थी। I had to write a letter, तो हमने एक पेन खरीदा, बिना पेन के तो लिख सकते नहीं थे। तो पेन will provide me this benefit कि I can write now. If you are feeling hungry, you buy food, now that you can eat it, so that is a benefit that is you are getting. Benefit is what you get by the purchase of the product. प्रोडक्ट खरीदने से आपको क्या फायदा हुआ? क्योंकि अगर आपको फायदा नहीं हो तो आप प्रोडक्ट खरीदेंगे क्यों? जाहिर सी बात है।
तो आपने प्रोडक्ट खरीदा है बिकॉज यू एक्सपेक्ट सर्टेन बेनिफिट्स टू कम योर वे, आपको कुछ फायदा मिलेगा, राइट? और आप जो ऑफर करेंगे एज अ कंज्यूमर, दैट विल बी द कॉस्ट। अच्छा, यहाँ कॉस्ट का मतलब है सैक्रिफाइस। इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस? क्या क्या? हाँ, यस दिव्या? प्राइस, कॉस्ट सर, प्राइस, कॉस्ट सर। money, कॉस्ट तो एक सैक्रिफाइस हो गया। कॉस्ट इज अ सैक्रिफाइस दैट यू मेक एज अ कस्टमर। आप जो भी सैक्रिफाइस कीजिएगा, आप जो भी दीजिएगा, वॉट एवर यू गिव विल बी द कॉस्ट फॉर यू। तो आपने सही बोला, प्राइस, प्राइस इज सपोज टू बी पेड बाय यू, तो पैसा गया आपका, so you have to pay money. And comfort, हाँ विवेक? comfort, 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 sir, comfort. comfort, you have to give your comfort. Now what you are supposed to give, आप क्या देने वाले हैं प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए? Maybe your time, money तो आपने बोला बिल्कुल, money, your time, your energy, your psychic cost. yes पता sir, ना साइकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत सारा होता है, पता नहीं काम होगा, प्रोडक्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा, या प्रोडक्ट खरीद लिया तो अब आपको लगा कि नहीं दूसरा प्रोडक्ट अच्छा था, हमने गलती करी। नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल कॉस्ट आर, व्हाट पीपल विल थिंक, ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है। विल पीपल अप्रूव, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या खरीद लिया, इससे अच्छा तो वो था, एंड दैट विल बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो व्हाट पीपल विल थिंक इफ आई एम सीन अराउंड यूजिंग द प्रोडक्ट। देखते हैं लोग कितना ब्रांड कॉन्शियस हो गए। So that may be a psychological cost. So whatever you give is the cost for you, and whatever you get by the purchase of the product is the benefit for you. इन दोनों का जो डिफरेंस है, that is the value. अगर इस डिफरेंस को हम लोग एज अ मार्केटर बढ़ा सके आपके लिए, तो हम लोग आपको सुपीरियर वैल्यू दे रहे हैं। जो कस्टमर है बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ना, उसको क्या मतलब है, एक्स वाई जेड whosoever that offers a superior value simply will fall in line, वो उसी के साथ हो जाएगा। Getting it? Anybody will prefer to buy a product which is which will offer a superior value to the target customers. Good morning, sir. Good morning, sir. You are very much busy. Vijay. Customer needs. Sorry, My God. student. तो अच्छा, ठीक है, so make sure कि आप इस नजरिए से देखिए कि कस्टमर आपके यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा अगर उसे लगेगा कि उसके वैल्यू प्रोपोजिशन में कहीं कुछ कमी है। So that was it. Let us move on. Market plan. देखिए, we as a marketer required to make plans. Planning is very important. बिना प्लानिंग का अगर आप रिसर्च लेते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा सिचुएशन होगा हम देखते हैं क्या करना है, अच्छा देखा जाएगा, नहीं चलेगा। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इट इज वेरी डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। दिस बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, उसके उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्लान डेवलप करना होगा। सो प्लान विल हैव टू बी मेड in order to achieve the marketing objectives. एक well conceived plan के तहत अगर आप marketing objectives को achieve करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका success rate बहुत ज्यादा होगा। अगर आप बिना सोचे समझे कभी भी कुछ करने लगते हैं, चलिए आज ऑफर देते हैं, कल वो एडवर्टाइज कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि एक एक मूव जो है ना बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ेगा। It is just like playing chess. यहाँ चेस खेलते हैं कोई? Anybody? Or having some idea about yes, that? Very good, very good, very good. yes sir, Yes, sir. चेस Yes, खेलने में sir. Yes, sir. तो यहाँ दो तरह के खिलाड़ी होंगे, एक तो बहुत मजे हुए खिलाड़ी होंगे, बहुत अच्छा जानते होंगे, और कुछ बहुत एकदम नए नए जो सीखा होगा कि घोड़ा चलेगा 2.5 चाल, जो वजीर है एकदम सीधा चलेगा, ये चलेगा whatever.
एज अ मार्केटर, अच्छा जो शतरंज खेलते हैं ना, उनको ये भी पता होता है कि अगर वो कोई खास, मेरा जो अपोनेंट है, अगर कोई खास क्या क्या मूव चल सकता है और उसके लिए मेरे क्या मूव्स होंगे, वो उस समय नहीं सोचने का। तब तो बाद आप बहुत नए खिलाड़ी हो गए कि अच्छा हम ये चलते हैं फिर देखते हैं, नहीं, वो क्या क्या मूव चल सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर जो हमारे जो अपोनेंट हैं उनका क्या मूव होगा और उसके लिए हम कैसे तैयार हैं। तो ये बहुत ही कंपटीशन के कारण आपको बहुत ही सोच समझकर एक एक मूव चलना होगा मार्केटिंग में। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस, क्योंकि एक गलत मूव आपको ले डूबेगा, एक अच्छा खासा इमेज आपका बर्बाद हो जाएगा और फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So in order to develop and maintain the lead, you have to be very particular about all these activities. इसीलिए मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। इसको डिफाइन कर लीजिएगा, what is meant by marketing plan. Just some lines इधर उधर, ताकि एक फ्रेमवर्क दिमाग में रहे, नहीं तो हो सकता है कि पूरे के बाद ब्लैंक ही हो जाएंगे। लिख लीजिएगा, डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, फ्रीज करता है कभी कभी। यस, डिसाइडिंग इन एडवांस as to how deciding in advance as to how the marketing objectives are realized. Deciding in advance as to how the marketing objectives are to be realized. The marketing objectives are to be realized. ठीक है, बस दम ब्रीफ। क्या मतलब है? You have to decide in advance. You have to decide beforehand. पहले से decide करना होगा how I intend to achieve the marketing objectives. Getting it? So you have to act as per the plan. हमने पहले सोच लिया है how I am going to play because I have to win the game. तो मेरा क्या action plan होगा? You have decided before the start of the play. अगर इन बिटवीन कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसके लिए देखिएगा कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं। मान लीजिए अचानक कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो गया जो हमने सोचा ही नहीं था, सो वी विल प्रिपेयर अ कंटिजेंसी प्लान फॉर दैट। तो प्लानिंग विल सेफगार्ड यू, वो प्लानिंग आपको बचाएगा कि आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाइए। वी विल कम बैक टू दैट। सो हम लोग क्या कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स? marketing plan is essentially determining the courses of actions, determining the courses of actions, इसको भी लिख लीजिएगा, determining the courses of actions that are required to be carried out, for the effective and efficient accomplishment of the marketing objectives. For the effective and efficient. Sir, please repeat again, sir. Determining the courses of actions, determining the courses of actions that are required to be carried out for the effective and efficient accomplishment of the marketing objectives. Accomplishment of the marketing objectives. देखिए क्या आ रहा है? Accomplishment का मतलब achievement, realization of. So whatever marketing objective that we have decided to achieve, ये objective कैसे हम लोग achieve करें in the most effective and efficient manner. Can anybody differentiate between these two terms? Effectiveness और efficiency में क्या अंतर होता है? अंतर है भी कि नहीं? Yes? ये सब डिफरेंस है। डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है?
effectiveness means uh, effectiveness means completing the task in proper way, and efficiency means completing the task in low price and in minimum time. Very good, Divya. You are said to be effective if you achieve the objectives. The more the objective that is achieved, the more effective you will be called. 90%, 100%, kitna? So effectiveness is a relative term. Somebody may be more effective as compared to the other one. So when you achievement is related to effectiveness is related to achievement. Effectiveness is related to achievement. याद रखिएगा, achievement of the objective. Achievement of the objective will make you effective. याद रखना. और efficiency का मतलब होता है किस cost पर आपने achieve किया. How much resources you used to achieve the objective. So दिव्या ने जो कहा बिल्कुल सही. Achieving the objective that will make you effective, and achieving the same at the least possible cost that will make you most efficient. So as a marketer you have to be both effective and efficient. मुझे marketing objective भी achieve करने हैं और कम से कम cost पर achieve करने हैं. इसीलिए तो plan बना रहे हैं. हो सकता है अगर आप plan नहीं बनाए, आप objective फिर भी achieve कर लें, लेकिन cost बहुत ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप objective achieve ही नहीं कर पाए, ये भी हो सकता है. तो मुझे दोनों चाहिए. वी हैव टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. मुझे ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने हैं और मुझे कम से कम कॉस्ट पर ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं. अच्छा, Mumtaz, Raja and Akriti, how come that you are entering the class so late? Mumtaz, Raja and Akriti, अभी तो अब क्लास खत्म होने का समय आ गया है, अभी आप एंट्री कर रहे हैं. तो आप क्या समझिएगा, यह एक एक लफ्ज को सुनना है आपको और समझना है. मार्केटिंग इज नॉट as easy as it has been perceived. Make sure that you enter on time. अभी तो आकृति का ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा है. I understand कि नेटवर्क इश्यूज होगा, लेकिन मेक श्योर कि आप एक एक बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये सब जब when you go for डिस्कशन पार्टनर फिर लगेगा कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है. Make sure that you attend to the entire lecture. बीच में कभी आने से कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं जनरेट करेगा. Make sure that you are there right from the start of the class. आप you arrive early. अभी एंट्री का समय नहीं है. Mind it. So as we were discussing that the goals have to be realized in the most effective and efficient manner. अच्छा, marketing plan से क्या फायदा होता है? Why anybody is supposed to develop a marketing plan? बिना प्लान के भी तो आप अचीव कर सकते हैं. देखिए यहाँ क्या बातें हो रही है. जब आप प्लान बनाते हैं, you get the guideline कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है. Otherwise you will end up in experimentation. अच्छा, ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, सारा कुछ आपको relevant ही लगने लगेगा. Once you make a plan, you have decided what you are supposed to do, and you stay focused on that only. अब सभी चीजों में आप अपना टांग नहीं अड़ने वाले हैं. हम ये भी करके देख लेते, वो भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. We have decided, we have premeditated, बहुत सोच समझ कर हमने डिसाइड किया है कि मुझे ऐसे इस गोल को अचीव करना है, and we will stay focused on that only. इधर उधर हम लोग भटकेंगे नहीं. We will not be distracted. जहां डिस्ट्रैक्शन हुआ तो फिर गोल आप अचीव नहीं कर पाइएगा. एकदम निशाने पर तीर लगना चाहिए, राइट? तो वो निशाना पर तीर तभी लगेगा व्हेन यू स्टे फोकस्ड. अर्जुन की निगाह चिड़िया की आंख पे थी. याद है ना वो कहानी? बहुत बड़ा सा कोई बरगद का पेड़ और बहुत को टहनी पत्ता दिख रहा था. अर्जुन को केवल उस चिड़िया की आंख दिख रही थी.
तो यू हैव टू स्टे फोकस्ड, लाइक आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए इधर उधर, नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्टेड हो जाइएगा। आज के डेट में बहुत सारा डेवलपमेंट है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, and one of the biggest distractors happens to be your mobile phone. You stay focused on what you have decided to achieve, then only you will be able to give the results. If you are easily distracted, it means that you are not very focused. The marketing plan will help you stay focused. ठीक है, लिख लेना, इस बात को भी लिख लीजिएगा। पहला चेंज कर लेना। Marketing plan sets the guidelines for number 1, the marketing program क्या करना है, and second, the financial allocation over a period of time. देखो दो चीजें हैं। What marketing program हम लोग बनाएंगे blending of the 4 P's. याद रखना 4 P's. Anybody? Price, product, place, physical evidence. Right. Place का क्या होता है? Place. What is meant by place over here? Or systematic. Where a buyer and seller meets, market. Yes. And देखो product, price, place and promotion. तो place का मतलब क्या है यहाँ पे? Promotion. Where buyer and seller meets to exchange the value. Market. Yes sir, market. मार्केट भी है ना, मार्केट इज नॉट अ प्लेस एनी मोर। वो सब डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में होता था। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स। आज के डेट में तो प्लेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइबर वर्ल्ड, साइबर स्पेस। कहाँ है, हम लोग कहाँ मिले? अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? कोई खास जगह तो नहीं है, हम लोग क्लासरूम में तो नहीं है अभी, और सभी लोग अपने अपने घर में हैं। तो मीटिंग पॉइंट है कहाँ? ये तो कोई पर्टिकुलर क्लासरूम है नहीं। तो प्लेस का जो कंसेप्ट है ना, दैट इज वेरी रिडंडेंट। मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज वेरी सोफिस्टिकेटेड। मार्केटिंग क्या, मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड आउट ऑफ इकोनॉमिक्स। इनफैक्ट कहते ही हैं इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होगा ना, लेटेस्ट डेवलपमेंट बड़ा अप्लाइड पार्ट होगा यहाँ पे। और इसलिए ये सारी बातें आप मत मान लीजिए क्योंकि हम कह रहे हैं, चाहे किसी ऑथेंटिक बुक, राइट? सो डोंट एक्सेप्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, या एनी यू हैव रेड इन एनी बुक। अप्लाई योर माइंड्स। किसी की बातों को एकदम फेस वैल्यू पर कभी एक्सेप्ट मत कीजिएगा, चाहे वो कितने भी बड़े बिग शॉट क्यों नहीं हो। अप्लाई योर माइंड्स, ट्राई टू फिगर आउट कि क्या बात मुझे लॉजिकल लगती है। एम आई कन्विंस्ड? आंख मूंद कर सारी बातों को नहीं मानना है एकदम, चाहे मेरी बात क्यों नहीं हो। यू आर्ग्यू कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, तब आप ज्यादा समझिएगा भी और बातें आपके दिमाग में बहुत ठहरेंगे भी। हमेशा क्रिटिकल रहिए, आप क्रिटिकल एनालिसिस करें। जो बातें बिल्कुल सही उसमें हम आर्ग्यू कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो बातें मुझे जहां थोड़ा भी संदेह होता है कि नहीं मुझे आई डोंट फील लाइक दिस, आई डोंट अग्री विथ दिस अप्रोच ऑफ मार्केटिंग, तो बिल्कुल लेट अस हैव अ डिस्कशन। वी आर नॉट इनटू आर्ग्यूमेंटेशन। हम लोगों का काम है डिस्कशन करके एक इन्फॉर्म्ड पीस ऑफ नॉलेज पर पहुंचना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, इनसाइट डेवलप करना है, और कुछ नहीं। तो वो डिस्कशन से होता है। सारी बातें किताब में लिखी हैं, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, नेट पर, बुक्स में, जर्नल्स में, सारी बातें हैं, लेकिन क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है दैट वो इरिप्लेसेबल है। बहुत बातें जो आज आपने सुनी है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ठहरी हुई हैं और समय में अब कहीं ना कहीं बाहर भी आएंगे। डोंट मिस एनी क्लास।
and make sure that you attend the class right from the very beginning. बीच में कभी एंटर कर लिया, 4 बार सुन लीजिएगा तो उससे क्या होगा? And be an active participant. I will allow to speak for the entire class if you so like. अगर आपको बोलना है कि नहीं मुझे